Okay, so welcome everyone. Thank you for joining today's session. My name is Ria from Dietitians in India, and Dietitians in India is the leading provider of online consultation services for dietitians and nutritionists. And today we all are gathered here for Know Your Words workshop. And I would like to welcome Mr. Deepak Sharma. He has trained a great number of people from all over India to develop a leadership skills. His courage and risk-taking skills made him a successful entrepreneur. Okay, and if you have guys any question after the session, we will have a Q&A session in the end, and we'll start with our session. And now I would like to share the podium with Deepak. Hi, Deepak, are you there? Hi, how are you? Yes, I'm here. Hello, everyone. How are you? I'm audible properly? Yeah, you audible. Okay. My name is Deepak Yes, Gupta. yes, you're. This Galaxy J7 Max, you can mute it on. So, myself, Deepak Gupta, I'm living in New Delhi and I have a good experience in entrepreneurship field. I work with telecom industry called Vodafone. I've been in health industry also. And currently, I'm associated with the education sector in early child development, right? And we are also associated with health industry also, like you are a dietitian, we are also associated like this, right? So a task has given to me to discuss some very important key areas with you, right? This will not be a radio talk, हम लोग आपस में बात करेंगे. So if somebody is sitting somewhere जहाँ पे वो comfortable है, वो लोग म्यूट से हटा सकते हैं. We can discuss lot of things, right? ये ऐसा सेशन नहीं होगा कि मैं बोलूंगा और आप लोग सिर्फ सुनेंगे, right? And you can also on. But for now, Deepak, I think everyone should mute themselves. Yeah, correct. And in the Then I Q&A will ask you to unmute. Then you can unmute and have a question because I will ask some questions with you, right? So I will start my session. It will be a very interactive session and you will really learn a lot. See, are you able to see the screen now properly? no, there's nothing on your screen. Yeah, now it's okay. Are you able to see now? Yes. Yeah. No, see. So, know your worth, right? When you know your worth, no one can make you feel worthless. आज वर्ल्ड में हो क्या रहा है? Somebody say something about us और हम नेगेटिव हो जाते हैं. आज हमें कोई कुछ भी बोल जाता है, हमें लगता है कि नो, वी आर नॉट वर्थ इट. इट हैपेंस, राइट? हमारा कोई पड़ोसी होता है, वो कहता है यू कांट डू दिस, और हम अपने आप को वर्थलेस समझने लग जाते हैं, राइट? व्हाट इज हैपनिंग? वी डोंट बिलीव इन आवरसेल्फ एंड व्हाट वी डू, वी बिलीव इन द पीपल हु आर गिविंग एनी टाइप ऑफ ओपिनियन अबाउट अस, और हम उसको सच मान के अपनी पूरी जिंदगी बेस करते हैं. Right? Don't allow anybody to steal your dream. This can be your lifetime mantra for your life. आप हमेशा ध्यान रखिए जिंदगी में, हमें अपनी जिंदगी में अपने सपनों को किसी को परमिशन नहीं देनी है उनको चुराने के लिए. Every one of you has a Michael Jordan talent at something, you just haven't find it yet. हर किसी में एक टैलेंट है, हिडन टैलेंट है जो अभी तक मिला नहीं है, और you have or you don't have believe in yourself enough to go and find it out. You are a genius, right? You are not meant to live a photocopy of someone else. आपको किसी ने कुछ बोला और आप उसको करने लग गए, right? You are not here to do what you don't belong, right? आपको अपनी capabilities पे believe रखना है, right? Got the idea? And you have to work on your purpose of your life. इस दुनिया में 98% जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी में अपने पर्पस पे काम नहीं कर रहे हैं, फुटबॉल की तरह बन गए हैं. somebody is kicking from somewhere, they are just get kicked, they are forgotten what they were, वो क्या बन सकते हैं जिंदगी में, right?
So what you have to understand today is that you are your own worth, and you who will decide your worth? You yourself. जब जॉब करने जाते हैं तो क्या होता है, बॉस हमारी वर्थ लगाता है कि हम आपको 30,000 रुपीज देंगे, हम आपको 50,000 रुपीज देंगे, तो वो हमारे ऊपर एक लेबल, एक टैग लगा देता है कि हम तो इसी लायक हैं बस 30,000 रुपीज के, और हम अपनी पूरी जिंदगी अपने पोटेंशियल को गंवा देते हैं। आज वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी अमेजोन का मालिक है, जेफ बेजोस, और उसको वो मैकडोनल्ड्स में एक टाइम पे बर्गर, ही वाज ऑन द काउंटर। अगर वो अपने माइंड को ऐसा बना लेता कि मैं तो बर्गर शॉप में काम करता हूं, तो क्या वो अमेजोन का ओनर बन पाता? नहीं बन पाता, राइट? सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर पर्पस ऑफ योर लाइफ, राइट? हमारे वेबिनार का एजेंडा क्या है? फियर ऑफ रिजेक्शन, fear of failure, why change is required in today's scenario, how to upgrade yourself, and laziness in taking new initiatives, right? आप लोग चाहते हैं कि आपका अच्छा नेटवर्क बने, आपके कनेक्शन में बहुत सारे लोग आए जो आपसे कंसल्टेंसी लें, राइट? यू हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ डायटीशियंस, बट कहीं ना कहीं वो रोड ब्लॉक क्या है जो हमें रोकता है? माइट बी आई विल बी एबल टू डिलीवर द थिंग विच विल ओपन योर माइंड, राइट? So I will cover all these things, right? So let us understand this throughout some motivation stories. Okay? I'm just playing a video, and just watch this video, and you will have a very good learning from this video. Just have a look. One day, a young boy asked his father, "What is the value of his life?" Instead of answering, the father told his son to take this rock and go sell it at a market. If anybody asks the price, raise 2 fingers and don't say anything. The boy then went to the market, and a woman asked, "How much is this rock? I want to put it in my garden." The boy didn't say anything and raised up 2 fingers. And the woman said, $2, I'll take it. And the boy went home and told his father, "A woman wants to buy this rock for $2. The father then said, "Son, I want you to take this rock to a museum. If anybody wants to buy it, don't say a word and just put up 2 fingers." The boy then went to the museum, and a man wanted to buy the rock. The boy didn't say a word and put up 2 fingers. And the man said, $200, I'll take it. The boy was shocked and went running home. "Father, a man wants to buy this rock for $200. His father then said, "Son, the last place I want you to take this rock is to a precious stone store. Show it to the owner and don't say a word. And if he asks the price, just put up 2 fingers." The son then went to a precious stone store. He showed the rock to the owner. "Where did you find this stone? It is one of the most rarest stones in the world. I must have it. How much would you sell it for?" The boy put up 2 fingers, and the man said, "I'll take it for $200,000. The boy, not knowing what to say, ran home to his father. "Father, there's a man that wants to buy the rock for $200,000. His father then said, "Son, do you know the value of your life now? You see, it doesn't matter where you come from, where you were born, the color of your skin, or how much money you were born into. It matters where you decide to place yourself, the people you surround yourself with, and how you choose to carry yourself. You may have lived your whole life thinking that you were a $2 stone. You may have lived your whole life surrounded by people that saw your worth only for $2. But everybody has a diamond inside of them. And we can choose to surround ourselves with people that see our value and see the diamond inside of us. We can choose to put ourselves in a market or put ourselves in a precious stone store. And you can also choose to see the value in other people. You can help other people see the diamond inside of them. Choose the people you surround yourself with wisely. That can make all the difference in your life. So what you understand by this story? आप में इस समय हम 76 लोग हैं, एक या 2 लोग या 3 लोग थोड़ा अनम्यूट करके थोड़ा बताइए क्या समझ में आया? What do you understand? I hope you got the idea of the story. So, Abhi, can I speak now?
Yeah. Hello. Yeah. So I understood about this story means so wherever your effort, so how you are thinking. आप Yes. क्या सोच रहे हैं आपके बारे में. तो अगर अभी जो डॉक्टर से अभी जो अभी वो बताया था, डॉक्टर भी जैसा 50 रुपए वाला भी फीस वाला भी है, 500 वाला भी है और 1000 वाला भी Yes. है. Yes. So like our value, so how we want to keep value in front of the world, like any people are in the society. Definitely yes. इस दुनिया में एक सर्जन है जो 3 लाख रुपए एक घंटे में कमाता है और एक सर्जन है जो उसको जॉब नहीं मिल रही है, राइट? सारा गेम किसके हाथ में है? हमारे हाथ में, हमारे माइंड के हाथ में. एनीबडी एल्स जिसको कुछ इसमें क्लियर हुआ इस वीडियो को देख के? कुछ और बताना चाहते हैं कुछ? Nobody is interested in telling what you understand in this story. The idea is this. Yeah. Most of the people have replied in the chat box. Okay. Just a second. Good evening, sir. I just want to say that it is only us who can tell our value. Nobody else can. Definitely yes. Very good. Very good. Right. Now, the idea behind is to tell you the story is that everything starts from us. हम लोग क्या करते हैं? बाहर चीजें ढूंढ रहे होते हैं लाइफ में, बट सब कुछ कहाँ होता है? सब हमारे अपने अंदर से इनसाइड से होता है, राइट? सो आज से हमें क्या ध्यान रखना है? हम अपनी वैल्यू, अपने वर्थ को डिसाइड करेंगे. Nobody else is going to decide the value of our life, right? Now, this is a elephant, right? हम सब, as we are 78 people right now, when we were born, हमें छोटे बच्चे होते हैं, right? बचपन से लेके 20 साल तक हमें सिर्फ नेगेटिविटी मिलती है. आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते. और हम लोग इतनी बार नो सुन लेते हैं तो हमारा जो माइंड है ना, वो उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट हो जाता है कि वी कांट डू एनीथिंग. हाथी का जो छोटा बच्चा होता है, तो जो महावत होता है, वो क्या करता है? बड़ा स्मार्ट होता है. वो हाथी के छोटे बच्चे को एक बहुत ही पतली वो थोड़ी ना मोटी चेन से बांध देते हैं, वो लोग रस्सी से बांध देते हैं. तो हाथी का बच्चा बहुत छोटा होता है, तो वो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है. बहुत कोशिश करता है, he tried a lot to break that chain, but he is unable to do that. And what happens inside his subconscious mind in 2 or 3 years that I can't break this chain, right? और वो बच्चा अपनी पूरी फाइट लगा लेता है, वो उस चेन को कभी तोड़ नहीं पाता है. तो उसका ऐसा माइंड सेटअप बन जाता है कि मैं जिंदगी भर इस चेन को नहीं तोड़ पाऊंगा. और वही हाथी का बच्चा जब बड़ा होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग एलिफेंट बन चुका होता है, तब भी उसका माइंड ऐसा ही रहता है. और तब हाथी जो महावत होता है, वो उसको बड़ी चेन से नहीं बांधता है, मोटी चेन से नहीं बांधता है, वो उसको पतली सी जंजीर से बांधता है. लेकिन तब भी वो हाथी ट्राई भी नहीं करता उसको तोड़ने के लिए. वाई? क्योंकि उसकी बचपन से जो फीडिंग हुई है उसके माइंड में, उसको लगने लग जाता है, अरे मैं चेन से बंध गया, नाउ द माइंड इज ब्लॉक्ड, राइट? एंड ही डोंट इवन ट्राई टू टेक द इनिशिएटिव. अदरवाइज वो चाहे तो एक सेकंड में चेन को तोड़ सकता है, पूरे पंडाल को तोड़ सकता है. ही कैन डू एनीथिंग, राइट? ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग. बट स्ट्रॉन्ग शरीर से है, लेकिन आदमी को स्ट्रॉन्ग होना कहां से है? माइंड से. हम अपनी जिंदगी में जो हैं, वो कौन डिसाइड करेगा? हमारा ब्रेन. तो हमें सबसे पहले क्या सीखना है? हाउ टू प्रोटेक्ट अवर ब्रेन. आप सब मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं. आप सबके लैपटॉप और मोबाइल में एंटीवायरस आपने लगा रखा है. If you don't have an antivirus in your laptop for one day, what you will do? You will become fearful. Oh, what will happen? Some virus don't come in my laptop, or something happens to my mobile. But what is happening here? The brain is corrupted. It happens. हम टीवी में क्या देख रहे हैं? बिग बॉस देख रहे हैं, हम जंक देख रहे हैं टीवी में 24 घंटे, हम कुछ प्रोग्राम्स देख रहे हैं. वो सारे प्रोग्राम 24 घंटे मेरे माइंड में ऑक्यूपाई हो जाते हैं, और जो रियल पोटेंशियल का जो असली काम करना है वो हम नहीं कर रहे हैं, और हम अपने ब्रेन में गार्बेज भर रहे हैं, राइट? तो होता क्या है उससे? गार्बेज से हम अपनी जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन हमने क्या करा? अपने ब्रेन में जो रियल सॉफ्टवेयर है उसको करप्ट कर दिया है. अपने हाथी की तरह बन गए हैं, माइंडसेट अब ऐसा बना लिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, राइट? एंड दिस हैपेंस विद ओनली अ मिडिल क्लास सेगमेंट, राइट? क्योंकि वो उस चेन को तोड़ने में कामयाब नहीं रह पाते हैं. तो आज हमारी सेकेंड लर्निंग क्या है? कि वी कैन डू एनीथिंग इन अवर लाइफ. व्हाट वी हैव टू लर्न इज हाउ टू ब्रेक द बैरियर इनसाइड अवर ब्रेन, राइट? तो हमारी जो जिंदगी में जो असली प्रिजन है वो कहां पर है?
वो प्रिजन में हम खुद हैं और वो हमारा ब्रेन है, राइट? सो आज के बाद हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम ये नहीं कर सकते. वी कैन डू एवरीथिंग इन दिस लाइफ, जस्ट वी हैव टू ओपन दिस ब्रेन. गॉट इट? तो दिस इज द सेकंड लर्निंग ऑफ द डे. फर्स्ट लर्निंग इज दैट हमारी वर्थ बहुत ज्यादा है, हम अपने आप को कभी भी सस्ते में सेल नहीं करेंगे, राइट? वी कैन डू एवरीथिंग. सेकंड, हम अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, हमारा जो माइंड है वो छोटे बच्चे की तरह नहीं है, वी आर वेल कैपेबल इनफ. These are the two learnings from this session till yet, right? Now I'm sharing one more video and how to face rejections and what is the benefit of that. Just see, just watch. The most traumatizing moment in Rowling's life was the day her mother died. She was 25 at the time. The death of her mother shattered her completely. This happened 6 months after she began writing Harry Potter, and she was sorry that her mother never knew that she was writing it. After the death of her mother, she moved to Portugal in 1992 and got married. Soon she gave birth to a daughter, Jessica. But things became worse. Sadly, her marriage didn't last long, and only after 13 months she divorced him and moved to Edinburgh with her daughter and the first 3 chapters of Harry Potter. She was forced to rely on state benefits and spent much of her time writing Harry Potter in cafes, with Jessica sleeping in the prom next to her. An exceptionally short-lived marriage had imploded, and I was jobless, a lone parent, and as poor as possible to be in modern Britain without being homeless. By every usual standard, I was the biggest failure I knew. Rowling fell into a deep depression and admits she even considered suicide. So, how her life changed? Because she was so poor she couldn't afford a computer or even the cost of photocopying the 90,000 word novel, so she manually typed each version to send to publishers. After sending her manuscript to 12 different publishers and getting rejected by every single one, Rowling began losing confidence in her book. Finally, the publishing house in London, Bloomsbury, a small London publisher, gave it a second chance after the CEO's 8-year-old daughter fell in love with it. Her books has since sold more than 450 million copies, won innumerable awards, been made into movies, and completely transformed Rowling's life. In 2011, Forbes estimated Rowling to be worth about $1 billion. She remains on its list of the world's most powerful celebrities and top-earning authors. J.K. Rowling went from being a jobless single mother to one of the best-selling authors of all time. But it didn't happen overnight. She faced rejections and constantly strived for success. She worked hard at her craft before anyone noticed her. If you have a dream or a passion and you just keep getting rejected or running into failure, don't let that stop you. If you're going through a tough time in your life and working in something you really believe in, don't give up. Who knows? You might end up breaking records. Great. So, what's your story? So, क्या समझ में आया इस स्टोरी से? I want 1 or 2% will reply on this. What do you understand Never by this? lose hope and confidence and always give up. Yes, and If you have a dream, so you have a dream and passion, and you have to do consistency and persistency, and you will achieve anything in life. very So good. initially we definitely will get the rejection, and we have to face the challenges. Yes. We have to find the way how to overcome the challenges, and we will. Yes, yes. जिसकी यहाँ से आवाज नहीं आ रही वो अनम्यूट कर दीजिए. Very good sir. The idea is that is a statement
किसी के बच्चे की आवाज आ रही है, बस उसको म्यूट कर दीजिए. There is a statement, you know, I have read in a book, SW, 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 SW. Some will, some won't. So what? Somewhere, somehow, somebody is waiting for your call, right? Company is giving you a platform that you will be connected to a lot of people all over India, right? And you are already working as a dietitian. Either you're a dietitian or a doctor, you work in any field. Principles of success are same, right? The game is when you talk to people, never feel rejected. क्योंकि लोग आपके आइडिया को रिजेक्ट करते हैं, आपको रिजेक्ट नहीं करते हैं. और हम लोग क्या करते हैं, कई बार हम जब लोगों से बात करते हैं, हमें लगता है they are rejecting us. They are not rejecting you. Might be they have some concern, they are busy in their life, they don't want to suppose subscribe a package of a dietitian, they don't want to lose their weight at that type of priority. They have a lot of things in their life. Might be they will connect with you after 1 month. So what is your role? You keep working with persistence, right? जेके रोलिंग के पास टाइपिंग करने के लिए कंप्यूटर नहीं था और 90,000 पेजेस की बुक उसने मैनुअली टाइप की थी, राइट? हमारे पास कई बार चीजें नहीं होती हैं, हम लोग सोचते हैं वी डोंट हैव दिस, वी डोंट हैव दैट, हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हम चीजों को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं लाइफ में. हमें जो सुख सुविधाएं मिली हैं, हमें उन्हीं से स्टार्ट करना चाहिए. बाकी चीजें गॉड विल अरेंज फॉर यू. When you act on your dream, the rest things will be arranged by the universe. What you need to do, you need to just act on your dream. Are you getting my point? Right? So what you need to understand from this J.K. Rowling story is that while having so much of rejections, one day a CEO child got an idea of the book, 8-year-old daughter, and that changed the history. और आज J.K. Rowling जो वर्थ है वो 10,000 करोड़ रुपए की है, 10,000 crores just by one Harry Potter book, right? आपको नहीं पता आप किस कस्टमर से टकराने वाले हैं, आप किस कस्टमर से आपका इंटरेक्शन होने वाला है, और वो कस्टमर हो सकता है आपके लिए क्या कर दे. Just be focused on your dream, on your work. That's the third learning of today, that never feel discouraged by rejection, right? Now, there is a very interesting story of two frogs. एक बार क्या होता है, दो फ्रॉग होते हैं, और ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मरम बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. छोटी स्टोरी है लेकिन उसकी लर्निंग बहुत स्ट्रॉन्ग है. एक फ्रॉग जो होता है उसको एक बार कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा होता है और वो फ्रॉग उसमें जंप मारता है और उसको एकदम से गर्माहट महसूस होती है. वो कहता है नहीं, दिस इज नॉट हियर वेयर आई वांट टू बी, और वो वहां से जंप मार के बाहर निकल जाता है. फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं. दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, दूसरा जो फ्रॉग होता है, व्हाट ही डू, उसके लिए जो तेल है वो थोड़ा गर्म करा जाता है, लेकिन वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होता है, वो थोड़े कम डिग्री पे होता है. तो वो फ्रॉग जब उसमें एंटर करता है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है टेम्परेचर के हिसाब से. 1 घंटे के बाद उस टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया जाता है, तो वो क्या करता है, फ्रॉग थोड़ा उसको गर्मी महसूस होती है, वो उसको फिर एडजस्ट कर लेता है. थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे बाद दोबारा टेम्परेचर को और बढ़ाया जाता है, तो क्या होता है, वो फ्रॉग बाहर नहीं निकलता, वो उसी में अपने आप को एडजस्ट करने लग जाता है, राइट? 1 घंटे के बाद दोबारा उसको बढ़ाया जाता है, बॉईल किया जाता है, और धीरे 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 वो जो तेल होता है वो बिल्कुल हॉटनेस की चरम सीमा पे आ जाता है, और वो फ्रॉग उसके बाद कोशिश ही नहीं करता बाहर निकलने के लिए, एंड ही डाइड इन दैट, राइट? मैसेज क्या है इसके पीछे? अगर आपको लग रहा है कि ये चीज आपके लिए नहीं है, एंड यू हैव टू एक्ट राइट नाउ, यू हैव टू टेक एक्शन, यू मस्ट टेक एक्शन. आज वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, लोग एक्शन नहीं करते हैं. हम लोग कहीं जॉब कर रहे होते हैं या हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम उसमें कोशिश करते हैं, फिर हम रुक जाते हैं, फिर हम दोबारा कोशिश करते हैं, फिर हम रुक जाते हैं. हम एक सेकंड वाले फ्रॉग की तरह बन जाते हैं, राइट? एक्शन करे बिना हम कंफर्ट जोन में जीने की आदत डाल लेते हैं लाइफ में, राइट? और हम सोचते हैं ठीक है कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, अभी तो टेम्परेचर नहीं है, अभी तो खर्चे पूरे हो रहे हैं, राइट? एक आधा कोरोना आता है, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है फैमिली में, थोड़ा बजट का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर भी हम कंफर्ट जोन में जाते हैं. ओके देख लेंगे, कर लेंगे. टेम्परेचर और गर्म होता है, टेम्परेचर और गर्म होता है. एक बार कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर इतना गर्म हो जाता है कि हम उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाते, राइट? एंड द फ्रॉग डाइड. सो व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड इज दैट जस्ट हैव अ विजन इन योर लाइफ, राइट? डू एक्शन. आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपको कंसिस्टेंटली एक्शन करना जरूरी है. टाइम को वेस्ट नहीं करना है. अगर आपने टाइम को वेस्ट किया तो लाइफ वेस्ट हो जाएगी, राइट? एक दिन में यू कैन टॉक टू 20 पीपल, एक दिन में यू कैन टॉक टू 10 पीपल. इट ऑल अबाउट द माइंड सेटअप. कई बार एक मीटिंग होती है एक कस्टमर के साथ, हम लोग कहते हैं ठीक है, ओके दैट्स इट. ऐसा नहीं है.
हमें फोकस होकर अपना डिसिप्लिन बनाना है लाइफ में, ताकि हम अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में जी सकें, राइट? दिस इज द फोर्थ लर्निंग ऑफ टुडे, दैट वी डोंट हैव टू बिकम द फ्रॉग एंड डाई. वी आर हियर टू लिव इन दिस वर्ल्ड एंड वी विल गेट द सक्सेस वी वांट, राइट? नाउ एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन. कंफर्ट जोन इज द कैंसर इन द माइंड, राइट? व्हाट इज द लर्निंग हियर? कि हमें अपनी जिंदगी में कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, हमें अपना नेक्स्ट ड्रीम रेडी रखना है, राइट? एक बार क्या होता है, आप किसी बच्चे से पूछो जो 18 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, बेटा व्हाट डू यू वांट टू डू, वो क्या बोलेगा? आई वांट टू डू अ जॉब. जब उसको जॉब मिल जाती है, उसके बाद उससे पूछो व्हाट डू यू वांट टू डू, ही इज ब्लैंक बिकॉज ही डोंट हैव अ नेक्स्ट ड्रीम. सो आपके पास अपने नेक्स्ट 4 to 5 ड्रीम्स होने चाहिए, या 4 to 5 गोल्स होने चाहिए जिसको आपको अचीव करना है, तो आपका ब्रेन कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं जाएगा. और जितने भी लोग लाइफ में कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, दे आर गॉन. तो हमें अपने आप को, इस वायरस को, इस कैंसर को अपने माइंड से बाहर निकालना है. सो दिस इज द फिफ्थ लर्निंग ऑफ द डे, नेवर बी इन द कंफर्ट जोन ऑफ योर लाइफ, राइट? नाउ सिक्स्थ, दिस इज कॉल्ड पैराडाइम शिफ्ट. एनीबॉडी नो अबाउट पैराडाइम शिफ्ट? आप में से कोई पैराडाइम शिफ्ट के बारे में जानता है? तो आप लोग जानेंगे ना भैया, क्या घटाना है क्या बढ़ाना है. Yes. Can you tell me something about it? What is a paradigm shift? Paradigm means like अगर अभी अपन सोचते हैं अभी अगर मेरा कैपेसिटी इतना ही है, Yes. उसके आगे नहीं जा सकता हूँ. अगर अपना माइंड अगर वहां तक ही बना लेते हैं, तो अगर अभी अपन थोड़ा एक्स्ट्रा माइल, जैसा भी रबर बैंड है, रबर बैंड जितना तक खींच सकते हैं और उससे ज्यादा भी खींच सकते हैं, वैसा ही अपना लाइफ में कुछ लोग पैराडाइम मतलब उतना ही बना सकते हैं. Yes, yes. There is a writer called Stephen Covey, right? He is a very successful writer. उनकी बुक है 7 Habits of Highly Successful People. पूरा करेक्शन करिए, उनको बताया गया था, ठीक है ना? उसके बाद आगे का जो हम सिग्नेचर में नहीं किए हैं अभी. Now we will talk about the paradigm shift. How to change the paradigm shift of our mind. Just see this video and it will really, really change your life. Just watch. As you can see, our team's doing fantastic. We should have that all wrapped up by the end of the month. Okay, appreciate that. So much of what we do in our personal lives and at the office is the result of the paradigms we hold. And what we do, in turn, affects the results we get. Thanks for coming to the meeting today, everyone. The word paradigm comes from the Greek root paradigma, meaning pattern, the pattern we expect to see, or the mental image of the way things are. We see everything through the perspective of our own paradigm. If you see your industry as one where growth is impossible, how does that affect what you do every day? And what results do you think you get from your actions? On the other hand, suppose you saw unlimited prospects for growth in your industry. How would that change your actions? What we see determine what we do, which in turn determines what we get. And unless we consciously stand apart from and examine our paradigms, that perhaps many of them are distorted, short-sighted, or just flat out wrong. I remember a mini paradigm shift I experienced one Sunday morning on a subway in New York City. People were sitting very quietly, some reading, some resting with their eyes closed. Suddenly, a man and his children entered the subway car. The children ran yelling through the car, throwing things, grabbing people's newspapers. Their father sat down near me and closed his eyes and did nothing. I felt irritated. I could not believe he would let his children run wild like that. After a few minutes of patience and restraint, I turned to him and said, "Sir, your children are really disturbing a lot of people. I wonder if you could control them just a little more." Yeah, you're right. I should do something. Well, we just came from the hospital where their mother died about an hour ago, and
I guess they don't know how to handle it. Guess I don't know how to handle it. Can you imagine how I felt at that moment? My paradigm shifted. Suddenly I saw things differently. And because I saw differently, I thought differently. I felt differently. I acted differently. My irritation vanished. Compassion flowed freely. I wanted to help instead of criticizing and complaining. Once you see things as they really are, you'll think, feel, and act differently. And you'll do it automatically, spontaneously. Can you see why paradigms are deeper than attitudes and behavior? If you want to make minor changes in your life, work on your behavior. But if you want to make significant quantum breakthroughs, work on your paradigms. What a wonderful learning from this video. I hope everybody watched this video. And the manager was talking to his team. वो चश्मा लगा रखा है कि I am a failure. This team cannot perform, right? जब हम अपने thought process को ऐसा बनाते हैं कि this is not going to work, तो 100% that things is not going to work. The game is here. Your brain has a neurons. Those neurons are connected with universe. तो जो आप सोचेंगे वही aura आप अपने आसपास बना लेंगे, and you will get the same results, right? So the today's learning is that we have to always be in the positive paradigm of life. हम किसी भी customer से बात कर रहे हैं, हम किसी भी dietitian से बात कर रहे हैं, what we have to understand is that everything is positive in life, right? If you want a team of 1,000 people, you can. If you want a team of 1 lakh people, you can. But एक बात ध्यान रखिएगा, big things start with small things. आपको बहुत बड़े काम करने के लिए बहुत बड़े-बड़े काम नहीं करने हैं, छोटे-छोटे कामों को सही तरीके से करना है, right? Got the idea? So what the key point is that develop the paradigm shift of your life and must understand, always be positive, right? Now, just a moment. Am I audible properly? Yes. Yes, you are audible. Right. So Stephen Covey is a very renowned writer. Now he is no more in the world. But ये world के सबसे successful writers में से एक है. और ये जो paradigm shift वाली जो story है, it's very very important for you. हमारे साथ होता क्या है? When we wake up in the morning, कई बार सुबह से negativity start हो जाती है और we just waste our day, right? So we have to be in the paradigm of positivity, right? 130 करोड़ लोग रहते हैं इंडिया में. आपको तो 100, 200, 300 डाइटिशियन चाहिए. आपको 100 पेरेंट्स चाहिए जो आपसे सेटिस्फाइड हो. होल लाइफ यू कैन हैव अ गुड लिविंग, राइट? द गेम इज हियर. तो आपको अपने माइंड के पैराडाइम को सेट करना है, चीजें बाद में सेट होंगी. हमें यू हैव टू लर्न दिस थिंग टुडे दैट द गेम स्टार्ट्स फ्रॉम यू. आपका एक सर्कल होता है, इनर सर्कल. मेरा नाम दीपक गुप्ता है. मैं इस दुनिया में सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकता हूँ. मैं अपनी वाइफ को चेंज नहीं कर सकता, अपनी बेटी को जिसको मैंने जन्म दिया उसको चेंज नहीं कर सकता, मेरे चाचा जी, मेरे मामा जी, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मैं उनको चेंज नहीं कर सकता हूँ. मेरे कस्टमर्स को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, मेरे क्लाइंट्स को मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ. मैं किसको चेंज कर सकता हूँ? सिर्फ अपने आप को बदल सकता हूँ. हम क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं. कंपनी ऐसी नहीं है, कस्टमर ऐसे नहीं है, कंपनी को ये सोचना चाहिए, कस्टमर को ये सोचना चाहिए, दिस हैज टू बी परफेक्ट, दिस हैज, मोदी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए. हम सारी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ अपने आप के बारे में नहीं सोच रहे. बट when we go inside, हमें पता लगेगा गेम स्टार्ट्स फ्रॉम अस. तो ऑलवेज रिमेंबर द पैराडाइम शिफ्ट स्टोरी. आपको अपना पैराडाइम हमेशा सेट रखना है, राइट? देयर इज अ वेरी गुड स्टेटमेंट, आपने 1000 बार सुना होगा, देयर इज नो पेन, देयर इज नो गेन, राइट? देयर इज अ वेरी गुड स्टोरी ऑफ एन आर्किटेक्ट. एक बार क्या होता है, शिल्पकार होता है, वो मूर्ति बनाता है, राइट? और वो बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाता है. तो वहां पर जब वो मूर्ति बनाने के लिए पत्थर लेने जाता है तो उसको 2 पत्थर मिलते हैं और वो दोनों पत्थर लेके आता है. जब वो पत्थर पे अपनी मूर्ति बनाने की स्टार्टिंग करता है और उसको ठोकने लग जाता है, व्हाट हैपेंस इज, उस पत्थर में से आवाज आती है, उस स्टोन में से आवाज आती है, डोंट, इट्स पेनिंग, इट्स हर्टिंग.
सो ही अगेन ट्राई टू मेक अ बहुत अच्छी मूर्ति बनाने लग जाता है, बट वो पत्थर फिर रोने लग जाता है, कहता है नो नो इट्स पेनिंग, आई कांट टॉलरेट दिस पेन, राइट. ही अगेन ट्राइड, पत्थर कहता है नहीं मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता है पेन, लीव मी, आई कांट टॉलरेट, राइट. तो वो शिल्पकार उसको छोड़ देता है और वो दूसरा पत्थर उठा के उसके ऊपर अपनी नक्काशी और सारी चीजें करने लग जाता है, और धीरे धीरे करके वो एक बहुत ही अच्छी मूर्ति के रूप में बन जाती है. आप सामने मूर्ति देख रहे हैं, कृष्ण जी की मूर्ति है, राइट. और वो जो शिल्पकार होता है, व्हाट ही डू, वो पत्थर उसको अलाउ करता है कि आई एम रेडी फॉर द पेन, राइट. जितना ही मुझे चुभेगा, आई एम रेडी फॉर दैट, डू वट एवर यू वांट टू डू, आई एम रेडी फॉर एवरी पेन इन लाइफ, राइट. आई एम रेडी फॉर द स्ट्रगल्स, आई एम रेडी फॉर द मीटिंग्स, आई एम एवरीथिंग फॉर दैट. एंड व्हाट हैपेंस इज धीरे धीरे करके वो एक बहुत अच्छी मूर्ति के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, राइट. जब मूर्ति डिलीवर करने का टाइम आता है तो जो ऑनर होता है मूर्ति लेके जाता है, तो जब वो मूर्ति लेके जा रहे होते हैं तो वो साथ में पत्थर भी पड़ा होता है, तो कहते हैं इस पत्थर को भी ले, तो कहते हैं हाँ ले जाइए, तो फ्री है. वो कहते हैं नारियल फोड़ने का काम आएगा. इस पोयम का, इस स्टोरी का मर्म बहुत स्ट्रांग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब वो मूर्ति मंदिर में लग जाती है और वो जो पत्थर होता है जिसने अपने आप को अलाउ नहीं किया होता है शिल्पकार को उसको मारने के लिए, वो पत्थर को नीचे लगा देते हैं. और जब लोग आते हैं तो क्या करते हैं, फूल माला कहाँ चढ़ेगी, भगवान जी की मूर्ति के ऊपर, और नारियल कहाँ फूटेगा, उस पत्थर के ऊपर, राइट. मैसेज क्या है, अब जो भी कस्टमर, जो भी श्रद्धालु आएंगे दर्शन करने के लिए, वो नारियल लेंगे और पत्थर के ऊपर मारेंगे, राइट. और भगवान जी के हाथ में, भगवान जी के ऊपर क्या चढ़ाएंगे, फूल माला चढ़ाएंगे. द मैसेज इज दैट वी हैव टू हैव पेन इन अवर लाइफ. हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी. अगर हम मेहनत से बचेंगे तो हम पत्थर की तरह बन जाएंगे, फिर नारियल फूटेंगे हमारे ऊपर. और अगर हम एक बार सही मेहनत करेंगे तो लोग हमें हार पहनाएंगे, राइट. आर यू गेटिंग कनेक्टेड विद योर प्रोफेशन एंड दिस स्टोरी, राइट. अगर कोई इंसान मेहनत से भागेगा, राइट, व्हाट हैपेंस, ही विल बी नॉट बी वेरी मच सक्सेसफुल, और उससे लाइफ के थपेड़े पड़ते रहेंगे. कॉम्प्रोमाइजेस, स्ट्रगल्स. आज एक 5 स्टार होटल में अच्छा डिनर करना एक स्ट्रगल बन जाता है लोगों का. एक अच्छी कार लेना एक स्ट्रगल है, राइट. ईएमआईज एक स्ट्रगल है, राइट. बहुत सारे हमारे सपने होते हैं जिंदगी में. वर्ल्ड टूर्स तो हम बात ही नहीं करते हैं वर्ल्ड टूर्स के बारे में. क्यों? क्योंकि हमें लगता है हम जा ही नहीं पाएंगे, राइट. सबकॉन्शियस माइंड अलाउ नहीं करता है, राइट. लेकिन अगर आप कामयाब होंगे तो क्या होगा, आपकी रिकॉग्निशन होगी, आपके पास खुला पैसा रहेगा, राइट. आपके पास हमेशा बैंक बैलेंस रहेगा. आपका बच्चा कहेगा पापा मुझे आईपैड लेके आना है, आप आईपैड लेके रह सकते हैं. आपका बच्चा कहेगा पापा मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करना है इस गर्मी में छुट्टियों में, लेट्स गो. तो या तो हम अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे या हम अपनी जिंदगी में सक्सेस पाएंगे. मेहनत तो करनी पड़ेगी. तो इस स्टोरी का पर्पस बताने का ये है कि पिलाई तो करवानी है, मेहनत तो करवानी है, तो बेटर है कि नारियल फुड़वाने की जगह राइट जगह मेहनत करवाएं, ताकि हमारे पे भी लोग आगे हाथ चढ़ाएं और हमें वो सैल्यूट करें कि यस यू हैव गॉट द गुड सक्सेस इन, राइट. एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी अबाउट दिस स्टोरी, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. आई होप यू हैव कनेक्टेड विद दिस स्टोरी वेरी डीपली. कोई बता सकता है स्टोरी से क्या सीखा उन्होंने? तो ये स्टोरी में मैं ये सीखा था, अभी शुरू में तो चैलेंज तो फेस करना पड़ेगा. यस. अगर पेन है तो भी गेन है. अगर अभी पेन नहीं है शुरू में, अगर अभी जिंदगी भर अभी जो नारियल, अभी जितना दिन भगवान मंदिर से दर्शन करने जाते हैं तो जिंदगी भर उसके ऊपर नारियल फोड़ते हैं. Yes. अगर इनिशियली अगर जैसा मूर्ति जैसा बनाया था उसको 6 महीना लगा, 1 साल लगा, 1 साल के बाद फूलमाला चल रहा है उसको, फिर सब लोग आके ब्लेसिंग्स भी ले रहे हैं. Exactly. Yes. So definitely you are 100% right, sir. Right. So the idea for everybody is that we have to be ready for the struggles and pains जो हमारे पर आने वाले हैं. उसका अवार्ड पे फोकस रखना है. इसमें हमारा फोकस क्या है, अवार्ड हमें मिलेगा क्या उससे, राइट. अगर हम पेन के ऊपर फोकस करेंगे तो वी आर गॉन, राइट. व्हेन अ मदर गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड, अ मदर डोंट फोकस ऑन द पेन व्हिच शी इज हैविंग इन 9 months. व्हाट शी फोकस, शी हैव अ वेरी गुड फोटो ऑफ अ चाइल्ड इन हर बेडरूम, शी ओनली सी दैट. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्मॉल, मेरे घर में 2 छोटे बच्चों की फोटो लगी हुई थी जब मेरी छोटी बहन हुई थी, ऐसे 20-30 साल पहले. मुझे अब समझ में आता है कि ऐसा क्यों लगाया था फोटो को, क्योंकि मम्मी का फोकस जो है बच्चे की फोटो पे होता है, तो वो सारा पेन बर्दाश्त कर लेती है, राइट. अभी क्या होता है, हम लोग अपने रिवॉर्ड्स को फोकस नहीं करते हैं, हम लोग अपने आने वाले मनी और सक्सेस को फोकस नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ पेन को फोकस करते हैं और द लाइफ इज गॉन, और हम अपनी जिंदगी में वो स्ट्रगल मोड में चले जाते हैं. तो हमें क्या सीखना है लाइफ में कि पेन आएगा लेकिन वो पेन हमारे भले के लिए है, वो हमें आगे लेके जाएगा, राइट. दैट्स द होल आइडिया, राइट. देयर इज अ वेरी गुड स्टोरी अबाउट सचिन तेंदुलकर एंड ब्रैड हॉक. ब्रैड हॉक एक ऑस्ट्रेलियन बॉलर है और 2007 में ही
जस्ट हैव अ मैच विद सचिन तेंदुलकर, और ब्रैड हॉक वाज अ न्यू बॉलर दैट टाइम, और उसको चांस मिला सचिन तेंदुलकर के साथ प्ले करने के लिए, एंड इत्तेफाक से उसने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया. The moment he bowled take the wicket of Sachin Tendulkar, it was a very big thing for them. ब्रैड हॉक सचिन तेंदुलकर के पास आया और उसने क्या बोला कि सर ये मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा दिन है और ये बॉल है, आप इस पे साइन कर दीजिए, और आज का दिन में अपने मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है कि मैंने आपको आउट कर दिया. सचिन तेंदुलकर सी ब्रैड हॉक, सचिन तेंदुलकर सी दैट बॉल, और आपको पता है सचिन तेंदुलकर ने उसको क्या बोला? उस पे साइन किया और उस पे बोला ये दिन तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा, दिस विल नेवर हैपन अगेन. और 2007 के बाद कम से कम 40 to 50 मैचेस ब्रैड हॉक और सचिन तेंदुलकर के हुए हैं, लेकिन ब्रैड हॉक सचिन तेंदुलकर के विकेट नहीं ले पाया. कितना बड़ा मैसेज है इसके पीछे. वो घर जाके सोया नहीं था स्टेटमेंट देने के बाद, उसने घर जाके प्लान बनाया था हाउ टू स्ट्रेटेजाइज द थिंग. अगर मैंने लिख दिया है कि ब्रैड हॉक ये दिन तेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा, तो ब्रैड हॉक के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर सके. तो हमें अपनी जिंदगी में खुद भी इस तरह से टैलेंटेड बनना है, राइट. ये एक स्टोरी है सचिन तेंदुलकर जब वो पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान मैच में सिद्धू के साथ वो खेल रहे थे, और 16 साल के सचिन तेंदुलकर, वकार यूनिस की बॉल आती है और सचिन तेंदुलकर के नाक पे जाके लगती है और नाक फट जाती है, खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, और सिद्धू को लगता है कि सचिन तेंदुलकर इज गॉन. वो 16 साल का बच्चा था, 15-16 साल का, और जब वो उसको लेके जाने लग जाते हैं, स्ट्रेचर आता है और वो बर्फ लगाते हैं उसके ऊपर, तो उनको लगता है अब तो जाएगा, कैसे खेलेगा, वकार यूनिस जैसे प्लेयर से कैसे भिड़ेगा. और सचिन तेंदुलकर ने एक लाइन बोली कि मैं खेलेगा. उसने नाक पे कुछ लगाया, पट्टी लगाई, कुछ लगाया, और वो रेडी हो गया, और नेक्स्ट वकार यूनिस की बॉल पे उसने चौका मार दिया, राइट. हमें जिंदगी में छोटा सा पेन आता है ना, हम लोग पता है क्या करते हैं, हम कोमा में चले जाते हैं. छोटा सा स्ट्रगल आता है ना, जरा से छोटा सा स्ट्रगल, हम कहते हैं हमसे नहीं हो पाएगा, कंपनी बेकार, कस्टमर्स बेकार, ये बेकार, वो बेकार, ये एक्सक्यूज, वो एक्सक्यूज, हम अपने आप को एक्सक्यूजेस में ढक लेते हैं. बट अ लीडर इज अ पर्सन हु विल ओवरकम ऑल द एक्सक्यूजेस, राइट. आप इस इंडिया में सबसे बड़े डायटीशियन बन सकते हैं. आज ये 68-70 लोग हैं, एक भी पर्सन इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है. इट्स अ गेम, इट्स अ मैजिक, इट्स द माइंड, राइट. बट उसके लिए अपने अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को जगाना पड़ेगा, राइट. आज तेंदुलकर ऐसी तेंदुलकर नहीं है. अगर आप में और उससे मेरे जैसे बंदा अगर कोई होता और उसके 16 साल की उम्र में यहाँ बॉल लग जाती और वकार यूनिस जैसा बॉलर होता, तो शायद हम लोग कहते नहीं यार हमसे कहाँ खेलेंगे हम लोग, और इंडियन टीम सोच रही थी कैसे खेलेंगे. बट वो ही इज अ करेज, दैट्स कॉल्ड द करेज, हिम्मत. तो हमें अपनी जिंदगी में हिम्मत रखनी जरूरी है. अगर हमारे पास हिम्मत है, हम जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं. ये क्लाइंट्स और ये डाइटिशियंस और ये इसका नेटवर्क बनाना तो बहुत छोटी चीज है, राइट. हमें क्या समझना है कि हमारे ब्रेन बहुत पावरफुल है, वी कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. व्हाट द आइडिया. तो हमें क्या समझ में आया कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी जरूरी है, हमें अपना बैकग्राउंड वर्क करना जरूरी है, राइट. रिजल्ट तब आएगा, राइट, जब हम उस लायक होंगे. आज तेंदुलकर के पास 10-20 हजार करोड़ रुपए होंगे, वो इसलिए फ्री में नहीं है, क्यों है, ही हैड पेड द प्राइस फॉर दैट, राइट. वो कहा था ना, उस सर ने अभी बात की थी, मैंने पूछा था, उन्होंने का पेन तो लेना पड़ेगा, राइट. और आपको जान के ताज्जुब होगा, सचिन तेंदुलकर जब प्रैक्टिस करता था वो 300 छक्के रोज मारता था, 300 सिक्सेस एवरी डे, ही प्लेड 7 hours a day, राइट. हम लोग मैच खेलने जाते हैं, 1-2 छक्के मारते हैं, घर में बैठ के बैठे रहते हैं. दैट्स व्हाई ही इज तेंदुलकर. तो हमें अगर बेस्ट डाइटिशियन बनना है वर्ल्ड में, यू कैन बिकम, राइट. जस्ट फोकस ऑन द वर्क, राइट. दैट्स द पॉइंट. नाउ हैबिट ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस स्टोरी हैज चेंज्ड माय लाइफ, राइट. और ये स्टोरी आज आपकी जिंदगी बदल देगी अगर आप इसके रियल पॉइंट को समझ पाए. अभी आपकी कंपनी में 3000 डाइटिशियंस कनेक्टेड हैं, राइट. उसमें से हमें टॉप 10 में कैसे आना है, राइट. सी, एक बार एक राजा होता है और उसका मंत्री होता है, और एक नाविक होता है जो बोट चलाता है. तो नाविक और जो मंत्री होता है वो बचपन के दोस्त होते हैं, राइट. साथ में पैदा हुए पड़ोसी होते हैं, साथ में खेलते थे, साथ में गुल्ली डंडा खेलते थे. और कामयाबी के स्तर पे जब वो पढ़ाई लिखाई करने लगे, उसके बाद स्पोर्ट्स में जाने लगे, तो क्या हुआ, वो नाविक सिर्फ नाविक ही रह गया, उसका बेटा, और जो उसका दोस्त था वो उस देश का मंत्री बन जाता है, राइट, मिनिस्टर बन जाता है. अब वो नाविक पूरी जिंदगी नेगेटिव रहता है, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, देखो मेरा दोस्त कहाँ पहुंच गया है, वो तो मंत्री बन गया है, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, मेरा दोस्त मंत्री बन गया है, मेरा दोस्त मंत्री बन गया है. और वो सबसे यही गाना गाता रहता था कि मेरा दोस्त मंत्री बन गया, मैं कुछ नहीं कर पाया. एक दिन राजा उसके गाँव में आता है और वहां पे कोई गेट टुगेदर होता है. राजा उस नाव में बैठ के, राजा को वहां जाना होता है,
और राजा उस नाव में बैठता है तो मंत्री राजा बोलता है, राजा साहब आपको पता है जो आपका मंत्री है मेरा दोस्त है ये, और देखो वो कहाँ पहुंच गया और मैं यहीं कहीं हूँ, देखो वो कहाँ पहुंच गया मैं यहीं कहीं हूँ। तो राजा समझ जाता है कोई ना कोई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। राजा कहता है ठीक है मैं उससे शाम को बात करूंगा। अचानक आवाज आती है, एक बिल्ली रो रही होती है। तो राजा उस मंत्री को भेजता है, इसको नाविक को भेजता है, कहता है बेटा नाविक जरा जाओ देख के आओ क्या हो रहा है। तो नाविक वहां जाता है, वहां से लौट के आता है, वो कहता है सर यहाँ पे ना एक बिल्ली है वो रो रही है। तो राजा कहता है क्यों रो रही है? नाविक कहता है तो मैंने देखा नहीं। दोबारा भेजता है उसको, वो देख के आता है, वो कहता है राजा साहब बिल्ली ने ना 4 बच्चों को जन्म दिया इसलिए रो रही है। ओके, तो राजा कहता है वेरी गुड, तो देख के आओ कि कौन सा रंग के बच्चे हैं। उसने कहा सर ये तो मैंने देखा नहीं। दोबारा देख के आओ। वो दोबारा जाता है, दोबारा आता है, सर वो भूरे रंग के बच्चे हैं। तो राजा कहता है अच्छा वहां खाने के लिए कुछ है, वहां पीने के लिए कुछ है, क्यों पेन क्यों हो रहा है उसको? दोबारा जाता है, फिर दोबारा आता है, कम से कम 10 बार वो जाता है, दोबारा आता है। राजा को 10 बार उसके से क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, राइट। फिर राजा अपने मंत्री को बुलाता है, वो कहता है मंत्री साहब इधर आओ, जरा देख के आओ वहां बिल्ली रो रही है, क्या सीन है? मंत्री जाता है, मंत्री 10 मिनट के बाद आता है, पता है क्या बोलता है? कहता है सर वहां पर एक बिल्ली है वो रो रही है, उसके 4 बच्चे उसने जन्म दिए है, भूरे रंग की बिल्ली है, वहां पे खाने पीने का अरेंजमेंट नहीं था, उसको पेन हो रहा था, मैंने दवाई लगवा दी है, मैंने 2 वहां पे चौकीदार खड़े कर दिए जो उनका रात भर ध्यान रखेंगे, राइट। और मैंने वहां पे किसी को अपॉइंट कर दिया है जो सुबह लेके गांव में लेके जाएगा और किसी जिम्मेदार पर्सन को जाके वो बिल्लियां सौंप देगा ताकि वो उसको पूरी जिंदगी पाल सके। और मैंने उसके लिए कुछ चंदा भी दे दिया है कि 8-10 साल तक उसके खाने पीने का अरेंजमेंट हो जाए, राइट। राजा मंत्री को बुलाता है और राजा नाविक को बुलाता है, कहता है नाविक देखो आप इसलिए नाविक हो और वो इसलिए मंत्री है, क्यों? क्योंकि उसके स्किल्स आपसे बहुत ज्यादा है। दोनों जनों को सेम काम दिया गया है, लेकिन एक बंदे ने एक काम को 10 बार में भी नहीं किया है और दूसरे बंदे ने उस काम को एंड तक क्लीन करके आया है। दैट्स कॉल्ड द स्किल्स, टेकिंग इनिशिएटिव्स। अब आपकी कंपनी में सपोज आप 3000 डाइटिशियन एसोसिएटेड हैं, एक डाइटिशियन 1 लाख रुपए कमाता है, एक डाइटिशियन 50,000 रुपए कमाता है, एक डाइटिशियन 10,000 रुपए कमाता है, एक डाइटिशियन हो सकता है 3 लाख रुपए पर मंथ भी ले रहा हूं। सब में क्या प्रॉब्लम है? सब में क्या डिफरेंस है? स्किल्स का डिफरेंस है। तो आपको किस चीज पे काम करना है? अपने स्किल्स को डेवलप करना है। वंस यू डेवलप द स्किल्स यू विल बी द नंबर 1 प्लेयर इन योर फील्ड। द प्रॉब्लम इज लोग अपने स्किल्स को डेवलप नहीं करते हैं, बाकी सारे काम कर रहे होते हैं। अगर आप अपने स्किल्स पे फोकस करेंगे, राइट, आप कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे। दैट्स वाई वो मंत्री है, दैट्स वाई वो नाविक है। अगर फोर्ड मोटर कंपनी में ऐसे इंटरव्यू होगा कि पर्ची निकालेंगे और स्लिप में से जिसका नाम आ जाएगा उसको वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, जिसका नाम आ जाएगा उसको चपरासी बना देंगे, तो क्या कंपनी चलेगी? चपरासी लेवल का बंदा अगर वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा, क्या वो हैंडल कर पाएगा ऑपरेशंस? नहीं कर पाएगा। तो हम अपनी जिंदगी में वहां है जहां तक हमारे स्किल्स है। द डे वी विल स्टार्ट वर्किंग मोर देन वी आर पेड फॉर, यू विल सी यू हैव द इमेंस ग्रोथ। बट प्रॉब्लम क्या है, लोग उस जगह काम नहीं करते। आई होप यू गॉट द मैसेज। क्या आप में से कोई बता सकता है इस स्टोरी से क्या सीखा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो। ये सभी वहाँ पे लोग जैसा एम्प्लॉय मेंटालिटी नहीं रहना चाहिए। यस। अगर एम्प्लॉय मेंटालिटी क्या करते हैं, हम काम जितना बोलते हैं, अगर 9 o'clock ऑफिस जाना है तो वो 9:15 साढ़े 9 तक पहुंचता है। करेक्ट। अगर अभी वहां से निकलना है तो 5 बजे निकलना है तो वो 4:30 बजे तैयार हो जाता है। करेक्ट। यू हैव अ बिग मेंटालिटी, राइट। आपको पहले से ही बड़ा सोचना बहुत जरूरी है लाइफ में, राइट। अगर जो भी काम है वो काम पूरा करना चाहिए। अभी जैसा भी आप बताया था मंत्री और नाविका, अगर अभी जहाँ पे गए हैं, अगर अभी वहाँ पे जो पूरा चीज जांच करने आना है, तो अभी इसमें क्या होता है, टाइम भी कम हो जाता है। फिर अभी सबसे ज्यादा एनर्जी और टाइम और मनी, 3 चीज सेव हो जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। यस, वेरी गुड। नाउ सी, डिजिटल मार्केटिंग इज द प्लेटफॉर्म। बिल गेट्स ने आज से 20 साल पहले बोला था, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। आज हम लोग बदलाव से डरते हैं। हमारे ब्रेन में डोपामिन होता है, वो हमें कंफर्ट लाइफ देने के लिए बना है। और प्रॉब्लम ये, जब भी हमको अनकंफर्टेबल काम करते हैं वो हमें रोक देता है। ये सबके साथ है। आप जिंदगी में अगर कोई भी अनकंफर्टेबल काम करेंगे ना, आपको जब स्टडी करेंगे ब्रेन की, आपको पता लगेगा ब्रेन के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है वो आपको रोक देंगी। वो उनका काम है आपको कंफर्ट लाइफ देना, राइट। इसलिए लोग कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो बहुत पावरफुल हो जाता है।
डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एक अपने आप में, फेसबुक में 100 करोड़ लोग हैं, आपको तो 100, 200, 300 लोग चाहिए। इंस्टाग्राम, एक आईडी बनाइए, 2 मिनट लगते हैं आईडी बनाने में, आप वहां पे सीखिए कैसे। एक 2 साल का बच्चा मोबाइल ऑपरेट कर लेता है, क्या हम इंस्टाग्राम चलाना नहीं सीख सकते हैं? यू कैन बिकम अ ब्रांड ऑन इंस्टाग्राम। आप वहाँ पेरेंट्स को कनेक्ट कीजिए, आप वहाँ दुनिया भर के जो लोग हैं, किसी की हेल्थ का चैलेंज है, आप वहाँ लोगों से कनेक्ट कीजिए, उनको बताइए अपने बारे में। लिंक्डइन, वहाँ पे करोड़ों लोग हैं, आपको तो 100 या 200 लोग चाहिए। व्हाट्सअप, 100 बिलियन लोग हैं व्हाट्सअप में, आपको कितने लोग चाहिए? यूट्यूब, रोज सुबह उठ के एक वीडियो बनाइए, माय नेम इज दिस, माय नेम इज निशा, आई एम अ डाइटिशियन एंड आई कैन हेल्प यू इन दिस एरिया, दैट्स इट। पीपल विल स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग यू, राइट? और कंपनी आपको, जो कंपनी है आपको खुद एक प्लेटफॉर्म दे रही है जहाँ पे लोग आपसे मिलेंगे। You can become as bigger as brand as your brain will tell you. So take the benefit of this. कई बार मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, सर मैं इतना डिजिटल नहीं हूँ, मुझे मेल लिखनी नहीं आती है। सीख लीजिए, 2 मिनट लगते हैं। अगर हम, when you are in a Rome, always talk about Rome, right? When you are in India, talk about India, right? So आपको सीखना है कि मुझे इन प्लेटफॉर्म्स को जितनी जल्दी मैं यूज कर पाऊँ, यूज कैसे करना है, नहीं तो हम जिंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो हमें आगे बढ़ना है, फास्ट भागना है, शेर की तरह भागना है, चीता की तरह भागना है, तो हमें वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। आज के जमाने में वो स्टोरी सुनी थी आपने, चूहा और खरगोश की स्टोरी। वो चूहा भागता है, खरगोश भागता है, राइट? तो नहीं, कछुए और खरगोश की स्टोरी। और वो डफर राइटर लिखता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आज स्लो एंड स्टडी विंस द रेस नहीं है, वो पुरानी जमाने की कहानियां थी कि वो खरगोश सो गया तो चूहा, खरगोश सो गया तो कछुआ जीत गया। आज वो खरगोश नहीं है जो, कछुए नहीं है जो सो जाएंगे। आज हर आदमी खरगोश है। आपको अगर खरगोश है तो खरगोश की तरह भागना पड़ेगा। डोंट फॉलो द प्रिंसिपल्स व्हिच वर इन लास्ट सेंचुरी। वो आज की सक्सेस के लिए नहीं है, वो उस जमाने की सक्सेस के लिए थी। अगर कोई इंसान इस स्टोरी को लेके बैठा रहेगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, द गेम इज ओवर, तो यू हैव टू रन फास्ट। तो इंटरनेट इज द वे। आप दिल्ली में बैठे बैठे किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज इतने सारे लोग हमें से कनेक्टेड है, कोई कहीं से, कोई कहीं से। यू कैन गिव द काउंसलिंग टू अ पर्सन इन लंदन, यू कैन गिव द काउंसलिंग टू द पर्सन इन अमेरिका, और पीपल विल कॉन्टैक्ट यू। लोग तो इंस्टाग्राम पे ढूंढते क्या है, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। बी अ ब्रांड, learn how to learn Facebook, learn how to use Instagram, YouTube पे सब कुछ अवेलेबल है, राइट? फ्यूनरल ऑफ आई कांट। आज आपको, अगर आपने इस स्टोरी को ध्यान से समझ लिया, जिंदगी भर आप ना तो मुझे भूलेंगे ना इस स्टोरी को भूलेंगे। और आप सबकी जिंदगी में आपको एक होमवर्क करना है घर जाके, अपने पेपर के ऊपर लिखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर आपका माइंड कहता है आई कांट। एक मैडम थी, उनका नाम था डोना, और उनकी क्लास में 4 साल के बच्चों की क्लास टीचर थी। वो बड़ी परेशान थी कि बच्चे कहते हैं मैम मैं ये नहीं कर सकता, मैं साइंस नहीं पढ़ सकता, मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकता, मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। मैडम बड़ी परेशान। तो मैडम ने एक दिन सोचा क्यों ना इसका सोल्यूशन किया जाए, राइट? तो मैडम ने उन बच्चों को बोला, बेटा जो जो चीजें आप नहीं कर सकते ना, आप वो लिख के लाइए पेपर के ऊपर, राइट? तो बच्चे लिख के लाते हैं, आई कांट लर्न इंग्लिश, आई कांट लर्न मैथ्स, आई कांट डू कैलकुलेशंस, आई कांट लर्न साइंस, मुझे ये याद नहीं रहता, मुझे ये वो याद नहीं रहता। और सब बच्चे अपना अपना आई कांट लिख के आ गए। मैडम ने क्या बोला, अब ये सारे जितने भी पेपर्स आप लाए हो सबको एक बॉक्स में रख दिया। सेम आप आज रात को करेंगे, अपना अपना आई कांट लिखना है, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, राइट? और साइकोलॉजिकली कुछ होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या। जब मैडम ने सबको बॉक्स में रख दिया, फिर मैम ने कहा अगले दिन हम आएंगे, कल आई कांट का फ्यूनरल है, सब बच्चे एक एक फूल लेके आएंगे। सब बच्चे अपने घर से एक फूल लेके आते हैं, और मैडम स्कूल के पीछे उसको ग्रेवयार्ड में ले जाती है। वहां पे एक गड्ढा खुदा हुआ होता है, और उस ग्रेवयार्ड के अंदर आई कांट के बॉक्स को रख देते हैं, राइट? और उस आई कांट के बॉक्स को रखने के बाद वहां मिट्टी मिट्टी रख देते हैं और सब फूल वगैरह रख देते हैं, राइट? और मैम कहती हैं हेलो, टुडे इज द डेथ सेरेमनी ऑफ आई कांट। आज आई कांट मर गया है, और आज के बाद सिर्फ उसके भाई बहन रह गए हैं जिनका नाम है आई कैन डू इट, आई कैन डू एनीथिंग, बट आई कांट इज डेड। एंड व्हाट हैपेंस, साइकोलॉजिकली इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा था उस कहानी से उन बच्चों के ऊपर। उनमें से एक बच्चा अमेरिका का प्रेसिडेंट बना था, राइट? कैन यू इमेजिन व्हाट इज द स्टोरी ऑफ आई कांट? आज आप अपने घर जाइए, आपको जो भी लगता है ना, आई कांट डू दिस, आई कांट डू दैट, सब लिखिए रात को, राइट? लिखने के बाद रात को सो जाइए और सुबह उठिए, जस्ट फ्लश इट आउट। उसकी डेथ हो गई है, यू कैन एनीथिंग, यू कैन। व्हाट आइडिया? तो दिस इज द वेरी गुड लर्निंग फॉर यू टुडे। अगर आपने इस छोटी सी जो मैडम डोना ने किया था आज से 20 साल पहले अमेरिका के किसी शहर में, किसी गांव में 30 साल पहले, ये अगर आप आज अपने साथ कर देंगे, यू कैन डू एनीथिंग। आपकी वोकैबुलरी में आई कांट नहीं होना चाहिए, उसकी डेथ हो चुकी है, राइट? टुडे इज द
डेथ एनिवर्सरी ऑफ आई कांट, 7:02 हुए हैं, सैटरडे का टाइम है, 13 फरवरी 2021. आई कांट इज डेड. फ्रॉम टुमारो ओनली आई कैन इज अवेलेबल. राइट. माइंड सेटअप इज द की. बैगर माइंड सेटअप के साथ नहीं जीना है. बैगर माइंड सेटअप क्या होता है? एक मील के बारे में सोचता है. लेबर माइंड क्या करता है? एक दिन के बारे में सोचता है. सैलरी जॉब क्लास माइंड सेटअप क्या करता है? एक महीने के बारे में सोचता है. कॉन्ट्रैक्टर एक क्वार्टर के बारे में सोचता है, 3 महीने के बारे में. एक बिजनेस ओनर क्या करता है? 1 साल के बारे में सोचता है. बस उसका थॉट प्रोसेस वहीं एंड हो जाता है. एक राजा 10 साल के बारे में सोचता है, और जो एक एम्परर होता है वो 100 साल के बारे में सोचता है. हमें अपने आप से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है. हम यहाँ पर कहाँ पर हैं? क्या हम एक लेबर थॉट प्रोसेस रखते हैं? क्या हम मंथली सैलरी वाला थॉट प्रोसेस रखते हैं? क्या हम कॉन्ट्रैक्टर वाला थॉट प्रोसेस रखते हैं? क्या हम बिजनेस ओनर वाला थॉट प्रोसेस रखते हैं? हम राजा वाला थॉट प्रोसेस रखते हैं, या हम एम्परर हैं? ट्राई टू बी ए एम्परर माइंडसेट. कोशिश तो करिए. अगर आप 6 नंबर पे आएंगे एम्परर माइंडसेट पे, हो सकता है कि आप ऑनर तक आ जाएं. अगर हम बैगर और लेबर और सैलरीड वाले माइंडसेट पे रहेंगे, पैसे मिलेंगे तो काम करेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो काम नहीं करेंगे. थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए, थोड़ा लॉन्ग विजन के साथ सोचिए. राइट. राइट. कुछ भी हो सकता है इस दुनिया के अंदर. सो बी अ एम्परर माइंडसेट. थिंक सो बिग दैट आपको भी डर लग जाए कि मैं क्या सोच रहा हूँ. तो जितना बड़ा सोच बनाएंगे उतना बड़ा आपके बैंक अकाउंट का साइज हो जाएगा. राइट. तो बी अ एम्परर माइंडसेट. आज के बाद, इस दिन के बाद आपको छोटा कभी नहीं सोचना है, हमेशा थिंक बिग. 10 गुना सोचिए. आप 1 मीटिंग करना चाहते हैं, 10 मीटिंग के बारे में सोचिए. राइट. जो सोच लेंगे वो हो जाएगा. राइट. सारी दुनिया क्या सोचती है? फेलियर इज द प्रॉब्लम. नो, फेलियर इज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस. सक्सेस एंड फेलियर नेवर मेंट टू बी सेपरेटेड. हैव यू एवर मेट अ सक्सेसफुल पर्सन हु हैड नेवर फेल्ड? ऐसा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो कामयाब होगा और फेल ना हो. सक्सेस एंड फेलियर ऑलवेज गो टुगेदर, because the failure we learn lessons from help us to become more successful. जितना ज्यादा हम फेल होंगे उतना हमें लर्निंग मिलेगी और हम और आगे बढ़ेंगे. राइट. एलन मस्क आज इस वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बन गया. क्यों बन गया? उसका पहला रॉकेट फेल हो गया, उसका सेकंड रॉकेट फेल हो गया, उसका थर्ड रॉकेट फेल हो गया. मैं लास्ट वीक उसका इंटरव्यू सुन रहा था. एलन मस्क पता क्या बोलते हैं? कहते हैं मैं रॉकेट साइंटिस्ट ढूंढ रहा था, मेरे को रॉकेट साइंटिस्ट नहीं मिला. क्यों? क्योंकि बढ़िया रॉकेट साइंटिस्ट मुझे मिल नहीं रहा है, वो मेरी कंपनी में काम नहीं करना चाहता है, लोकल मुझे चाहिए नहीं. राइट. और उसने फोर्स जब रॉकेट लॉन्च किया, आज वो मार्स और मून में पता नहीं क्या करना चाह रहा है. उसने टेस्ला गाड़ियां बना दी हैं. सोचो, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते लेने की. अभी आज की तारीख में 1 करोड़ की गाड़ी होती है, 60 लाख की गाड़ी होती है. वो टेस्ला गाड़ी बना रहा है. मतलब वो गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही है और अमेरिका में बिक रही है. आज आप और हम बना सकते हैं, सोच सकते हैं. हमारी अपने थॉट प्रोसेस को जगाना है. ये बब्बर शेर है जो सो रहा है लाइफ के अंदर, और हम क्या छोटे छोटे फेलियर्स को देख के रो रहे हैं. फेलियर एक छोटी सी चीज है, वो मिथ है माइंड का. मोस्ट सो कॉल्ड फेलियर्स आर टेम्परेरी डिफीट. There is a difference between temporary defeat and permanent failure. हम लड़ाइयां जरूर हारेंगे लेकिन युद्ध हम जरूर जीतेंगे लाइफ का. ठीक है. तो हमें सीखना है. टेम्परेरी डिफीट और परमानेंट फेलियर में बहुत फर्क होता है. कई बार हमें एक आधा फेलियर मिल जाता है, हम सोचते हैं लाइफ एंड हो गई, अब कैसे होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं होगा. फेलियर एक स्टेपिंग स्टोन है, उस फेलियर के आगे बढ़िए और आगे चलिए. दैट्स द की लर्निंग टुडे. एंड सेकंड, प्रोक्रास्टिनेशन रॉब्स योर अपॉर्चुनिटी. राइट. अगर आप अपने आप को बदलेंगे नहीं आज की तारीख में तो क्या होगा? The game is over. It's a significant fact that no great leader is ever known from procrastination. कोई भी ऐसा लीडर नहीं बना जो टाल मटोली के लिए बना हो. You are fortunate if ambition drives you into action, never permitting your falter or turn back once you are rendered to decision to go forward. अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया तो आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है. राइट. टाइम आपका प्लेयर है साथ में, जो आपके साथ चेस खेल रहा है. अगर आप नहीं प्ले करेंगे तो आप बोर्ड से वाइप ऑफ हो जाएंगे. आपको पता है, डिले मीन्स डिफीट. हमेशा ध्यान रखिए, डिले मीन्स डिफीट. जितना आप डिले करेंगे उतना ज्यादा लाइफ में डिफीट मिलने वाली है. सक्सेसफुल पीपल टेक क्विक डिसीजंस इन लाइफ. और हम लोग क्या सोचते हैं? डिसीजन लेंगे, सोचेंगे, करेंगे, बताएंगे. आपको तुरंत डिसीजन लेके एक्शन करना है, काम करना है. और फेलियर बुरी नहीं होती है, फेलियर एक बहुत बढ़िया चीज होती है. फेलियर को गले लगाना सीखिए. जितना ज्यादा फेल होंगे उतना ज्यादा कामयाब होंगे. और लोग क्या सोचते हैं? फेल हो गए तो गेम ओवर हो गया. ऐसा नहीं है. फेलियर एक नेक्स्ट सीढ़ी है. राइट. एक सीरीज आई थी स्कैम, वो कहता है फेलियर क्या है? सक्सेस के पहले वाला चैप्टर. दैट्स इट. राइट. तो आपको यही सीखना है कि लाइफ में मुझे आगे कैसे बढ़ना है. राइट. और ये लास्ट स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. एंड जस्ट सी दिस, व्हाट इज देयर इनसाइड इट. इट्स वंडरफुल.
There is a legend of an ancient commander. He ordered his men ashore, leaving only a single sentry aboard each of his ships. His soldiers were about to face an army that far outnumbered his own. But the commander knew that fear itself was the greater enemy. It was his belief in their courage that inspired him to act, that inspired him to remove even the possibility of retreat. My men have courage in their hearts. Victory lies within them. How can I unleash it? Burn the ships! Burn them all! There is no retreat! We will not leave these shores alive! Unless we win! We either triumph or we perish! And when they did, each person who wins in any undertaking must be willing to burn their ships and remove any chance of retreat. This is essential to succeed. Now, what this story tells us? There were a team of 50 people, और वो एक आइलैंड पे जाते हैं लड़ने के लिए जहाँ पर 2000 सैनिक होते हैं. इनको बाद में पता लगता है. तो इनका लीडर क्या बोलता है? बर्न योर शिप्स. जब आप जहाज जला देंगे तो आप वापसी नहीं जा पाएंगे. तो आपके पास दो ही चांस है, या तो आप जीतेंगे या मरेंगे. एंड इट्स अ रियलिटी दैट दिस टीम विन ओवर 2000 पीपल. सो क्या आप लोग अपने जहाज जलाने को तैयार हैं? कंफर्ट जोन को किल करके लाइफ में आगे बढ़ने को तैयार हैं? This is the whole agenda of this today meeting. And read these books. There are some books. क्योंकि हमें क्या करना है? अपने माइंड की नेगेटिविटी को खत्म करना है. वो टीवी में बिग बॉस और कहानी घर घर की देख के तो नहीं होगा. उसके लिए आपको लर्निंग लेनी है लाइफ में. क्या हम लोग बिल गेट्स से मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं, लेकिन हम बिल गेट्स से सीख सकते हैं उसकी बुक खरीद के. राइट? There is a book You Can Win, Secret, Goals, Rich Dad Poor Dad, Power of Subconscious Mind. These are some books, right? And read the books 15 minutes a day. आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे, आपका नेगेटिव माइंड क्लियर होगा, एंड यू विल बी ऑलवेज अनशेकेबल बिलीफ के साथ काम करेंगे. राइट? विजन ऑफ लाइफ क्या होता है? मोहम्मद अली क्या बोलते हैं? आई डोंट काउंट माई सिटअप्स, आई ओनली स्टार्ट काउंटिंग व्हेन इट स्टार्ट हर्टिंग. व्हेन आई फील पेन, दैट्स व्हेन आई स्टार्ट काउंटिंग, बिकॉज दैट इज व्हेन रियली काउंट्स. ये पुशअप से तब काउंट करता था जब इसको पेन होना स्टार्ट होता था. ऐसे थोड़ा मोहम्मद अली बन गया. So we have to be very strong in our life. Some people to learn, right? So the best time is now for the new beginning of life, right? Thank you so much for your time, and I'm done. Over to the host, and any question answer we can discuss. Okay, so thank you so much, Deepak. It was a really great session. And now we'll have a quick Q&A session. You guys can ask your questions. You can just unmute yourself if you have any question, or you can raise your hands, and we can start with the Q&A.
Any question in your mind? I think I have a question. Okay, Yeah. so in a world full of competition, how one can create their value? Just work smartly. आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करने के लिए अपना प्रेजेंस दिखाना जरूरी है लोगों को, राइट? कोई भी नई कंपनी आती है, अपना प्रेजेंस कैसे दिखाती है? कैसे पता लगता है आपको कोई कंपनी एक ब्रांड है? जब आप अपना मोबाइल ओपन करते हैं तो आपको वहाँ प्रेजेंस नजर आता है, राइट? जब आप टीवी ओपन करते हैं आपको वहाँ प्रेजेंस नजर आता है, राइट? लेकिन अभी हम लोग तो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, बट यस, वी हैव अ यूट्यूब, वी हैव अ इंस्टाग्राम, वी हैव फेसबुक, वी हैव लिंक्डइन, राइट? एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट विद द स्मॉल थिंग्स. हमें बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, हमें छोटे छोटे कामों को सही तरह से करना है. बिग थिंग्स आर नॉट सो बिग, स्मॉल थिंग्स कैन बी डन परफेक्टली, राइट? आप छोटा स्टेप लीजिए, एक अपडेट डालिए फेसबुक पे एक दिन में, 30 अपडेट महीने के हो गए हैं, आपको 10-20 क्लाइंट्स वहां से मिल जाएंगे. सिंपल छोटे छोटे काम करने लाइफ में. हम कई बार काम शुरू क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम बड़ा करने की सोचते हैं. ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, राइट? Okay, thank you. So I think people are giving their reviews in the chat box and they really like this session. Okay. 2 or 3 guys, people if you can. have any questions, you can just ask. Aman, please, if you have any question, you can ask. You have just raised your hand. Yes, hello. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Sir, my question was that we talked about motivation. हमने बात की कि फेलियर को और पेन को हमें किस तरीके से देखना चाहिए, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, जो पैराडाइम शिफ्ट की बात की, और काफी मोटिवेशन जो करंट सेशन से मिली. बट माय क्वेश्चन इज कि वो मोटिवेशन को लॉन्ग टर्म कैसे सस्टेन करके हम रख सकते हैं? मान लीजिए आपका सेशन हमने आज ज्वाइन किया और काफी मोटिवेटेड फील भी हुआ, बट लेटर उस मोटिवेशन को आगे अगर हम कोई भी काम करते हैं, मान लीजिए अगर वो मोटिवेटेड हम उसके लिए है, हम आज शुरू करते हैं, हम कल करते हैं, बट देन एक पॉइंट आता है देन हमें दोबारा उस मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है. तो उस चीज को हम किस तरीके से टैकल करें अगर इस तरीके के सेटबैक हमें फेस करने पड़ते हैं? तो बहुत सिंपल है ये. इट्स वेरी सिंपल अमन. आपको सबसे पहले क्या सीखना है कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में फर्क होता है. मोटिवेशन आज है, कल खत्म हो जाएगा. जब नोज मिलने स्टार्ट होंगी, जब चैलेंजेस आएंगे तो मोटिवेशन गायब हो जाएगा. आपको इंस्पायर होना है. कैसे? जैसे हमें बॉडी के लिए इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना पड़ता है, हमें खाना खाना पड़ता है अच्छा. अगर आप तो डाइटिशियन है, अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी हेल्थ रखेंगे, तभी हम फिट रहेंगे, राइट? सेम हमें अपने ब्रेन का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखने के लिए हमें टाइम टू टाइम एक डोज लेनी पड़ेगी ब्रेन को ठीक करने के लिए. बॉडी की डोज क्या है? खाना. ब्रेन की डोज क्या है? पॉजिटिव बुक्स. आप देखो मेरे पीछे आपको स्क्रीन पे बुक शेल्फ नजर आ रहा है. मेरे पास कम से कम 300 बुक्स हैं, मैं पढ़ चुका हूँ, 300 बुक्स, राइट? एंड राइट नाउ आई एम रीडिंग अ वेरी गुड बुक, टूल्स ऑफ टाइटन्स, राइट? मैं कम से कम 2 लाख रुपए की किताबें पढ़ चुका हूँ अपनी लाइफ में, राइट? तो ये ब्रेन को क्या करता है? ब्रेन फूड है ये. आपका कहना बिल्कुल सही है. मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट कैसे रखूं? 15 to 20 minutes a day, read a book, listen to a positive YouTube video, watch a positive movie which will inspire you. आपको अपनी जिंदगी में अपने ब्रेन को डोज टाइम टू टाइम देनी है. अगर आप डोज ब्रेन की ध्यान रखेंगे, आप कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकते, राइट? दिस इज द की यू हैव टू लर्न टुडे. क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इन चीजों में. 15 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 20 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 20 मिनट रोज पढ़िए. अगर आप 7 बजे उठते हैं, 6:30 बजे उठिए, आधे घंटे रोज मिल जाएगा आपको, और आपको 10-12 घंटे मिल जाएंगे महीने में. दैट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल स्टेप. और आप कभी जिंदगी में नेगेटिव नहीं हो सकते. व्हाट्स द आइडिया? जी, थैंक यू सो मच. और एक और सर अगर आप बता सकते हैं, सो वन बुक यू कैन सजेस्ट दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ईच ऑफ अस. कोई एक जो आपकी जो फेवरेट या फिर हमारे लिए काफी मोटिवेशन के बेसिस पे काफी बेनिफिशियल हो सकती है, जस्ट वन बुक. सबसे बेसिक और आसान बुक पढ़िए. शिव खेड़ा की बुक है जीत आपकी, यू कैन विन. सबसे बेसिक बुक है, उसको पढ़िए आप. आपको बहुत अच्छा डोज मिलेगा ब्रेन के लिए. फिर नेक्स्ट बुक, बहुत सारी बुक्स हैं. सबसे आसान और सबसे पहली बुक पढ़िए, शिव खेड़ा, यू कैन विन. वेरी गुड बुक, आपको पूरा माइंड को क्लियर कर देगी. फिर सेकंड बुक, फिर थर्ड बुक, फिर फोर्थ बुक. इससे स्टार्ट कीजिए, यू विल रियली एंजॉय. थैंक यू सो मच सर, आई विल स्टार्ट. So the next question, I guess from Upasna. Upasna has raised her hand. Upasna, you can unmute yourself and ask your question.
Yeah, I just wanted to know, sir, were you like that only, or there was something like what brought you to turn towards this attitude and this perspective of life? I didn't get you. आप शुरू से ही ऐसे थे या कोई ऐसी सिचुएशन आई लाइफ में जिसने आपकी लाइफ में भी कोई टर्न दिया है? I just wish to know that. I have seen a lot of failures in my life. That's why I'm able to guide you that failure is the foundation of success, right? I have been through a lot of failures in my life. I have a business which I have got a loss of 3-4 crore rupees, right? I got a very big fallout. I sold my house that time, right? Then I started reading some books. I was positive, right? I have been through a lot of struggle in my life. That's why I have learned from that experience that when we fail, people just ignore us. लोग ढंग से बात नहीं करते हैं. Relatives don't talk to us. अगर आपकी कार है 10 लाख की कार से आप 3 लाख की कार पे आ जाएंगे, people will see you with a different eyes. ये तो फेल हो गया, right? But you have to take your level to the next level, right? Everybody can do that, right? हमेशा ध्यान रखिए, failure is the foundation of success. मैं चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हूँ. मैंने अपनी जिंदगी बहुत स्ट्रगल देखा है. ऐसे दिन भी देखे हैं जब अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं. ऐसे दिन भी देखे हैं जब अकाउंट में 10,000 रुपए, राइट? और स्ट्रगलिंग फेज बहुत देखा है. तो उसी के एक्सपीरियंस से मैंने आपसे चीजें शेयर करी हैं. कभी फेलियर से घबराना नहीं है. जब भी फेलियर आए तो बोलना है ओके वेरी गुड, दिस इज द नेक्स्ट लेडर. इस पे चढ़ के मैं कामयाब होने वाला हूँ, राइट? That's what I wanted to know. You never discussed about your story. That's what I have my business. I have got the losses in my business. I have worked with telecom. I worked with the education sector. So I have a 20 years experience and I have done more than 3 to 4 crore rupees loss. 4 करोड़ रुपए पूरी जिंदगी में लोग नहीं कमाते हैं. मैंने अपनी 42 इयर्स की एज में 4 करोड़ से ज्यादा का लॉस कर चुका हूँ, राइट? अगर 4 करोड़ किसी का लॉस हो जाएगा ना, लोगों का 10,000 का लॉस हो जाता है ना, उनका हार्ट फेल हो जाता है क्या हुआ, राइट? तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग. तो मैंने वो दिन देखे हैं, मैंने बहुत टफ टाइम देखा है जिंदगी में, राइट? सो उसको ओवरकम करके ही मैं आगे बढ़ूं. क्योंकि हमारा सेशन सिर्फ 1 घंटे का है. आई कांट कवर लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट बिकॉज मैंने कुछ लिमिटेड टॉपिक्स निकाले थे. In future, when we have lot of sessions on different topics, I will cover everything, right? बहुत सारी चीजें होती हैं. डिसिप्लिन होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, लीडरशिप होती है, काउंसलिंग होती है. बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं लाइफ में. We will cover everything one by one. Right. So thank you so much. Most welcome, Pastor. Most welcome. Okay. So Galaxy J7, do you have any questions? Okay, I guess I have a question in the chat. There is a question from Radha that this is a question related to my technology. Actually, I don't want to share my current location. Then how can I start verify myself in Google Business? कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन आप अपने गूगल बिजनेस में अकाउंट बनाइए एंड डोंट शेयर योर लोकेशन, शेयर योर मोबाइल नंबर ओनली एंड पीपल विल कनेक्ट विद यू. शेयर योर ईमेल आईडी. वहां पे लोकेशन मत लिखिए, वहां इंडिया लिख दीजिए, दिल्ली मत लिखिए. जो भी आपकी लोकेशन है choose it. People will connect with you. I hope in Google there is an option, right? You are specifically telling about the Google or Facebook or Instagram or any other site. So just mention India there, pan India business, and you can connect with them. और आपको ऐसा कौन सा फियर है जो आपको रोक रहा है अपना एरिया डिस्क्लोज करने के लिए? क्या आपको अपने काम पे फेथ नहीं है? कोई हम गलत काम कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि हमको ऐसा काम करें इससे लोगों को पता लगेगा तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी? ऐसा तो नहीं है, राइट? सो जो भी एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज माय प्रॉब्लम, राइट? सो अगर आप लोकेशन शेयर नहीं करना चाहते, नो इशू. पीपल ओनली वांट द सॉल्यूशन. सी द प्रोफेशन यू आर, लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को समस्या का समाधान चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यू कैन सॉल्यूशन टू एनीवेयर. You can give the solution to anyone from anywhere. Location doesn't matter. Your will matters. आपके अंदर की इंटेंशन क्या है वो मैटर करती है. Is it secure for us? Hello? Is it secure for us that your technical team can tell you that what is the system in your login system? You can discuss with your technical department, but I don't think location matters. But might be in your software there is something you can discuss with your IT people.
Okay, so Deepak, I think we should wind up the session now, and it was really motivating. Thank you for being with us. Thank you for being with Dietitians in India. It was pleasure having you. Thank you for giving us your time. Thank you for giving me the opportunity to share my ideas with you. And I hope you have learned a lot of things. Just apply them. Thank you so much. Thank you so much, Most Deepak, welcome. and thank you everyone for coming and joining us today. We are going to conduct so many other sessions. Just wait for it. Okay. Thank you, Deepak. Most welcome. Thank you so much. Have a nice day.